Okay, so ladies and gentlemen, the topic which we are covering today or starting today is that we have a physical switch. I will show you in a minute. And this switch, you want to configure it or you want to reconfigure it. If it is new, you are configuring. If it is an old working one, you are reconfiguring it. You are changing the configuration for some reason. So as I said that first of all, you should access it. And to access it, either you will be accessing it when you have a physical connection to the switch, or you can do it remotely. These are the two ways. Both are equally good, but this method physically is, for example, if you haven't configured, this is the new switch for you, then definitely you cannot connect remotely. So then you have the only method which is physical. And for this, as I said, you need a console cable for you, and I will show in a minute. Then you need your laptop or desktop, which will be acting as an input and output device for this switch, because switch does not have any keyboard or screen. I will show in a minute. And your device laptop should have some software installed on it via which you will be connecting to this switch physically. And ladies and gentlemen, the one which I am using is called PuTTY. You can also use the Tera term, but I always use the PuTTY. I always use PuTTY, this one. So we will download this and install on our computer between the laptop or desktop, and through this PuTTY we will be connecting physically with the switch via the console cable. Make sense? Okay. As I said that once you have physically connection, we have configured somewhat, then you will configure the SSH client, SSH server or telnet server, and allow this connection remotely. And definitely you will create some users, some username, passwords, because आप नहीं चाहते कि जिसका दिल चाहे मेरे सर्वर पे, मेरी मशीन के ऊपर आके जो मर्जी कर जाए. तो अगर आप रिमोटली इजाजत देंगे तो आप लाजमी तौर पे उसके लिए कुछ यूजर नेम्स, पासवर्ड्स क्रिएट करेंगे. फिर हम ये भी आपको बताएंगे कि ये यूजर नेम और पासवर्ड्स लोकल भी हो सकते हैं, सेंट्रलाइज भी हो सकते हैं. Does it make sense? जी, does it make sense? What's your name? अनम. तो अनम क्या मतलब है इन दो बातों का? मैंने कहा इट कैन बी लोकल और इट कैन बी सेंट्रलाइज. क्या मतलब हुआ? शाबाश, गलत बोलो. कोई सिर्फ आपने पूछा नहीं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने बार बार कहा कि समझ आ गई, समझ आ गई. चाहिए था कि कोई का हाथ रेस कर देता कि नहीं जी ये बात तो क्लियर नहीं हो रही. तो जस्ट इसलिए आपको वो कह रहा हूं. नहीं समझ आई, नो प्रॉब्लम, आई एक्सप्लेन. नहीं आई, दैट्स द नाइस आंसर. यदि ये है कि हम ये यूजर नेम, मिसाल के तौर पे यूजर नेम एहसान और पासवर्ड फॉर एग्जांपल सिस्को, मिसाल के तौर पे मैं इसको रख देता हूं यूजर नेम एहसान और पासवर्ड सिस्को. ये यूजर नेम और पासवर्ड मैं स्विच में भी क्रिएट कर सकता हूं, तो ये लोकल हो गया. मैं दूसरा रखता हूं जो कि आपने अपना नाम बताया, अनम. द सेकंड यूजर इज अनम and password is Irfan, for example. So with me, I have two users now. The third may be the Cisco and class, whatever you want to say, CCNA and whatever. फिर हम इन पासवर्ड्स के बारे में और भी बातें करेंगे क्योंकि हम अपने यूजर के पासवर्ड्स को एक खास स्ट्रेंथ देना चाहेंगे. उसका पासवर्ड मिसाल के तौर पे 12 डिजिट से करेक्टर से कम ना हो. उसमें उसके अगर वो फिर आगे इन चीजों के देखेंगे, नो प्रॉब्लम्स. अब बात समझ. ये एक तरीका हो गया कि इसको कहते हैं हम लोकल. सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि हम एक और मशीन बना देते हैं. मिसाल के तौर पे मेरे पास 500 स्विचेस हैं और मेरे पास हर स्विच के ऊपर मेरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास 1500 मेरे यूजर्स हैं.
अब मैं हर एक डिवाइस के ऊपर जाके 1500 यूजर का डेटा नहीं क्रिएट कर सकता। ऐसे ही है ना, 1500 स्विचेस हैं तो लाजिमी तौर पर 500 राउटर्स भी होंगे, 500 राउटर हैं तो 200 फायरवॉल्स भी होंगी मिसाल के तौर पे, इतने डिवाइसेस के ऊपर। और मिसाल के तौर पे मेरा कोई नया यूजर आया है, कोई नया एम्प्लॉय आया है और मुझे कहा जा रहा है कि उसके लिए आप क्रिएट करो, तो मैं तो 3 महीने लगा दूंगा और वो 3 महीने मुफ्त की तनख्वाह लेगा। तो कहेगा मैं आ रहा हूं, काम नहीं कर सकता तो तुम्हारी वजह है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेंट्रलाइज मशीन बना देते हैं। बस एक सेंट्रलाइज मशीन के ऊपर हम उसका यूजर क्रिएट करेंगे विच विल नॉट टेक मोर देन अ मिनट, और दूसरे मिनट में वो काम कर रहा होगा तमाम मशीन के ऊपर। कुछ बात समझ आ रही? जिसको कहते हैं ट्रिपल ए सर्वर। तो हम एक अपनी मशीन के अपने नेटवर्क में एक स्पेशलाइज मशीन रख लेंगे, स्पेशलाइज मतलब इस पर्पज के लिए जो कि ये काम करेगा। तो बस हम उसमें किसी भी, कल हमारा कोई यूजर चला गया, हमारा कोई इंप्लॉई चला गया हमसे खफा होके रिजाइन करके, तो अगर मैं 3 महीने उसका यूजर नेम खत्म नहीं कर सका तो 3 महीने तक वो मेरे नेटवर्क को एक्सेस करता रहेगा। अब वो मेरे लिए डेंजरस हो गया क्योंकि बाहर चला गया है, तो मुझे तो चाहिए उसे निकलने से पहले पहले उसका अकाउंट खत्म कर दूं, डिलीट कर दूं। तो अगर सेंट्रलाइज मशीन है तो मैं एक कमांड देके उसको फारग करके कहूंगा जाओ, कुछ भी नहीं कर सकते हो। डजंट मेक सेंस? तो इसमें भी बात करेंगे, आज नहीं, लेकिन कम से कम आपका एक विजन हो कि हमारी ये लाइंस है। ठीक है, तो आपने एक मोड आपका है यूजर एग्जिट मोड, फिर है आपका प्रिविलेज मोड जिसको इनेबल मोड भी कहते हैं, प्रिविलेज मोड, और तीसरा मोड हमने पढ़ना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, तो ये सारे काम भी आज हमने देखने हैं। इसके अलावा एक काम और हमने देखना है, मैं अपना टास्क दो तरह से करूंगा, एक रियल हार्डवेयर पे, और नंबर 2 यही काम मैं आपके पैकेट ट्रेसर पे करूंगा, पैकेट ट्रेसर पे करूंगा। आपसे मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप बताएंगे कि क्या ये दोनों पे काम करना इज सेम और नॉट। अगर सेम है तो कम से कम ये खौफ खत्म हो गया, पहला खौफ खत्म हो गया कि पता नहीं इस हार्डवेयर को हाथ लगाया तो खराब हो जाएगा। ये खराब नहीं होता। हाँ, आपने लाजमी तौर पे काम करना है, सोच ये करना है, बिकॉज यू आर किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप एम्प्लॉई हैं, वो आपको इजाजत देता है काम करो तो आपको कौन रोक सकता है। तो इसलिए आपने उसको काम करना है, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आप जाके उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इज इट क्लियर? तो एक चीज हमने ये देखना है कि क्या दोनों का इंटरफेस एग्जैक्टली सेम है, तो वेल एंड गुड। नहीं है तो फिर हम सोचेंगे कि जी नहीं, हम आपको हर एक को एक एक स्विच, राउटर, फायरवॉल, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, फायरवॉल एंड एवरीथिंग, हर एक को एक एक गिफ्ट करेंगे जी, घर पे आपने प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर नहीं है, दोनों सेम है, तो एटलीस्ट एट होम यू कैन प्रैक्टिस यूजिंग पैकेट ट्रेस। इसलिए हमने शुरू दिन से पैकेट ट्रेसर को पुश किया कि ये देखो, इसको देखो, ये चीज क्या है। यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन? उसके बाद जब मैं ये काम कर लूं तो हमने 2 टेबल्स पीछे सेट कर दिए। आप लोग आपको एक स्विच, और जो कुछ मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं वो सारा कुछ वहां टेबल पे मौजूद है। 2 टेबल्स पे ज्यादा इतने बंदे नहीं है, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अगर आप 5-5 का भी बना ले तो 3 ग्रुप्स इजिली ये टास्क अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो उससे आपका एक तो खौफ खत्म हो जाएगा कि इक्विपमेंट के साथ कैसे काम करना है, हाथ नहीं कांपेंगे, और प्रैक्टिस करनी है तो आपकी फिर मर्जी है कि आप फिजिकल पे करते हैं या पैकेट ट्रेसर आपके घर पे है, आपके डिवाइस पे है, नॉट एन इशू। तो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? ओके जी। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि स्विच क्या चीज है। स्विच क्या चीज है, तो इसके लिए मैं आपके दो तरीके से दिखाना चाहूंगा। एक, अगर मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं तो फिर मुझे नजर आएगा कि आपको स्विच नजर आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो स्विच हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे है, और इसका आप अपने रिज्यूमे में कल लिख सकते हो कि आप 2960 स्विच
मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा होगा, सिस्को 2960 कैटलिस्ट स्विच, सिस्को 2960 कैटलिस्ट स्विच आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप किस स्विच पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं? इस स्विच पे कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपको कुछ ये इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स नजर आ रही हैं, हदीका, जैन, कायनात, हसन और तैयब, ये इनपुट आयो पोर्ट्स हैं जिसके जरिए हम, अगर जहां भी आपको समझ ना आए प्लीज स्टॉप मी, ओके, सो दैट आई शुड रिपीट। तो इन पोर्ट्स के जरिए हम अपने एंड डिवाइसेस मोस्टली इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये 24 पोर्ट की फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, और दो इसमें आपके पास गीगाबिट पोर्ट्स हैं। गीगाबिट का मतलब है 10 टाइम फास्टर, यानी कि यहां पे अगर आप कोई डिवाइस लगाते हैं तो हम इसको डेफिनेटली 100 मेगाबिट पर सेकंड तक के स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपने एक स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करना है तो आई विल बी हैप्पी टू यूज द गीगाबिट, क्योंकि एक स्विच के ऊपर 2 से 10 मेगाबिट 100 मेगाबिट पर सेकंड आ रहे हैं। दूसरे स्विच से जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो लाजमी तौर पे आई नीड ए मोर बैंडविड्थ, तो आई कैन यूज द गीगाबिट। या अगर मैंने किसी सर्वर को लगाना है तो मैं उसको भी गीगाबिट पे लगा सकता हूं। तो बेसिकली दिस स्विच सपोर्ट बोथ द 100 मेगाबिट पर सेकंड एंड गीगाबिट पर सेकंड एज वेल। बात समझ आ गई? ओके। इसके अलावा अगर आप इस स्विच को देखें तो इसमें एक स्पेशल पोर्ट है जिसके ऊपर मुझे नजर तो नहीं आ रहा, आप मुझे बताएंगे स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? कंसोल। ये वो पोर्ट है जो आज हम इस्तेमाल करेंगे, कंसोल पोर्ट, ठीक है। तो इसके जरिए हम फिजिकली क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ये देखो स्विच का ये टॉप व्यू देखो, बैक व्यू देखो, लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, कोई इसके साथ कीबोर्ड और स्क्रीन नहीं। तो इसको लाजमी तौर पे मुझे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होगा। तो अगर लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा तो स्पेशल जो पोर्ट है इसमें टैड द कंसोल। कैन यू सी जैन, मोहसिन, तैयब, हारिस, कायनात, कैन यू सी दिस पोर्ट? कंसोल पोर्ट। यस सर। जी। तो इस पोर्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। ये राउटर पे भी होती है, ये स्विच पे भी होती है, ये फायरवॉल्स पे भी होती है, यानी तमाम नेटवर्किंग डिवाइसेस पे आपको ये कंसोल पोर्ट मिलेगी। बात समझ आ गई? ओके। इसके बाद हम आपको इसके बाद मैं आपको ये एक केबल दिखा रहा हूं जो कि ब्लू कलर की है। इसके दोनों इंटरफेसेस आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। एक इसका RJ45 कनेक्टर है जो बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है वो सीरियल पोर्ट है जिसको RS232 कहते हैं। यानी इसका एक पोर्ट RJ45 और दूसरा पोर्ट RS232 सीरियल। नजर आ रहा है ना? देख सकते हो 9 पिन का, ये 9 पिन की केबल है। इज इट क्लियर हदीका? इज इट विजिबल टू यू ऑन योर स्क्रीन? शाबाशी। तो आप देख सकते हो कि ये है आपकी कंसोल केबल। अब लाजमी तौर पे अभी आपने कंसोल पोर्ट देखी अपने स्विच के ऊपर, वो RJ45 को सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा स्विच है और ये मेरी कंसोल केबल है तो ये इजीली इसके अंदर प्लग इन हो गया, एक एंड का मसला तो रिजॉल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेकंड एंड है सीरियल पोर्ट, ये मुझे अपने लैपटॉप पे लगानी होगी, लेकिन आजकल के किसी भी लेटेस्ट डिवाइस के ऊपर सीरियल केबल, सीरियल पोर्ट नहीं है, इवन पैरेलल पोर्ट भी नहीं है। अगर आप अपने लैपटॉप्स को, जिनके पास भी लैपटॉप्स हैं, साइड पे देखें, इस इंटरफेस के लिए जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, आपके लैपटॉप पे कोई पोर्ट नहीं। चेक कर लो, आई एम विद यू। पुराना अगर किसी के पास कोई 20-25 साल पुराना स्विच हो, राउटर डिवाइस हो, तो वहां उसमें ये अवेलेबल था
आजकल के किसी डिवाइस में ये नहीं। इसका मतलब है कि ये मेरे डिवाइस के साथ, मेरे लैपटॉप के साथ नहीं लग सकता। अगर नहीं लग सकता तो हमने इसके लिए आसान काम किया कि एक कन्वर्टर ले लिया। हमने एक अदर कन्वर्टर ले लिया जो कि आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसका एक एंड जो है वो सीरियल है और दूसरा यूएसबी है। एक सीरियल है और दूसरा यूएसबी है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखें ये सीरियल ली कंसोल की, और इसको अपने कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। देखें एक कर दिया। अब इसका दूसरा एंड क्या बन गया, यूएसबी। इजिली आई कैन कनेक्ट। ठीक है मंसूर? तो ये मैं अपने लैपटॉप में लगा। नंबर 2, लाजमी तौर पे ये एक्टिव डिवाइस है, इसको पावर भी दूंगा, स्विच को पावर भी दूंगा। लेकिन पहले मैं पुटी पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि पुटी नहीं होगा तो मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसे क्लियर है ना? ओके, नाउ आई एम हियर। एनीवन? कायनात, हसन, तैयब, मोहसिन, जैन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? शाबाश। मेरी सर्कल चैट देखता रहो। जैन ने कहा यस सर। हदीका, कायनात, नो सर। ओके, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई प्रोसीड। अब मैंने कहा कि मेरे डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन इसकी सिर्फ पुटी पे ही होगी। पुटी पे नहीं होगी। पुटी सिर्फ मुझे इंटरफेस प्रोवाइड करेगा इस स्विच तक। पुटी एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे इंटरफेस प्रोवाइड करेगा इस डिवाइस तक जाने के, यानी मेरे लैपटॉप को स्विच के साथ कनेक्ट करने में मेरी मदद करेगा। डू यू गॉट द आंसर हदीका? अभी एक अगर नहीं भी समझ आई, गिव मी अ मिनट टू आई एक्सप्लेन। ओके, नाइस जी। अब मैं क्या करूंगा, आई गो टू दी हेयर टू द ब्राउजर एंड आई राइट हेयर पुटी, PUTTY, पुटी डाउनलोड। अब आपका वो है कि आपका डिवाइस कौन सा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू पीपल हैव ए विंडोज, बट इट डिपेंड अपॉन, लाजमी नहीं को विंडो कोई आसमानी किताब में लिखा हुआ कि विंडो इस्तेमाल करना लाजमी है। यू माइट बी इन लिनक्स। मिसाल के तौर पे जब आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से लोग साइबर सिक्योरिटी और ये कोर्सेज की तरफ आएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी वर्किंग विद द Kali. What is Kali? It is an operating system which is Linux based. You want to say something? Okay. काम करना है करें। ओके, मेरी बात समझ आ रही है? वी माइट बी यूजिंग Kali, वी माइट बी यूजिंग दी सिक्योरिटी ओनियन। दीज आर ऑल दी, मिसाल के तौर पे चले, मुझे आजकल थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, यू पीपल। ओके, कैन आई मिनिमाइज? ओके, चले, अगर नहीं तो मैं अभी आपको, जब मैं इसको शेयर करता हूं तो आपको बताता हूं। इस एक मशीन के ऊपर इस वक्त 5 से 6 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी होती है, मुझे अपने बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। तो मैं यहाँ 6 डिवाइसेस लेके या तो नहीं बैठ सकता, और स्पेशली जब मैं घर से पढ़ा रहा होता हूँ। चले मैं तो कर लूंगा कि मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट को कैसे कहूं कि 6 कंप्यूटर अपने घर पे रखो फिर हम पढ़ाई करेंगे, नामुमकिन है। तो हम इसी के अंदर 5, 6, 10 वट एवर यू वांट, हम एक ही मशीन के ऊपर वर्चुअली इतनी मशीनें इंस्टॉल कर लेंगे और सब एक दूसरे से बात करेंगे। तो मेरे सारे एक्सपेरिमेंट्स रियल वर्ल्ड टाइम में हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? ओके, तो अभी आपने डिसाइड करना है तैयब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस वक्त जो मैं यूज कर रहा हूं दैट इज विंडोज 10। दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट्स का है या 64 बिट्स का है। और अगर आपको नहीं पता तो कोई बड़ा मसला नहीं, आप यहां लिखें सिस्टम इन्फो और इसको ओपन कर लें।
तो आपको पता Sir, चल जाएगा। my one is Windows 10 and the system is 64 नाइस, bit of नाइस, वेरी operating नाइस। system. वी वांट टू लिसन समथिंग फ्रॉम यू द सेम, कि आपका सिस्टम विंडोज 10 है, विंडोज 10 पे काम कर रहा है, और वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 10 है, और वो 64 बिट का। नाइस। देखिए मेरा भी नजर आ रहा है कि मेरे पास विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देख लें जी, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका वर्जन जो है वो 10.0 ब्ला 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 है, और ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। तो ये हमें इजीली पता चल गया। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जब ये मुझे पता चल गया, इसके अकॉर्डिंगली मैं, देखिए यहां भी नजर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, ठीक है, ओके। और सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, x64। तो विंडोज 10 64 बिट बेस्ड पीसी। तो आपने सिस्टम इन्फो से ये देख लिया। अब आप इसकी बेस के ऊपर, इट माइट बी लिनक्स, इट माइट बी यूबंटू। तो जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मेरे इस सिस्टम के ऊपर कितने सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं। देख लें जी, इसके ऊपर साइबर ऑप्स वर्क स्टेशन भी है, इसके ऊपर साइबर ऑप्स सिक्योरिटी ओनियन भी है, इस पे यूबंटू भी है, इसके ऊपर काली भी है, इसके ऊपर मेटाक्सप्लॉइट भी है। 1 2 3 4 5, और एक विंडोज भी मौजूद है। कितने हो गए, 6। चलें और भी देख लेते हैं अगर दिल चाहता है तो। 6 तो आपको नजर आ गए, मैं 6 के 6 को इकट्ठा रन कर सकता हूं, और इसके साथ अगर मुझे VMware कहीं नजर आ जाए तो इट विल बी इवन मोर नाइस। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली काफी टाइम से मैं उस पर काम करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जल्द मैं इंशाल्लाह उस पर वापस आने की कोशिश करूंगा। नजर आ रहा है आप किसी को VMware? ये जी VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो इसको भी ओपन करके देखते हैं, इसमें भी कुछ है कि खाली है। इसके अंदर एक है इस वक्त EVE-NG, ये पैकेट ट्रेसर का भी बाप है। अभी जो आप पैकेट ट्रेसर सीख रहे हैं ना, ये उसका बाप दादा में शामिल होता है, ठीक है, EVE-NG। तो और मुझे इसमें इंस्टॉल करने हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। जो ही टाइम मिलेगा इंशाल्लाह आई विल डू इट। और अगर मैं ना कर सका तो आ, हमारे अब्बास तो है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि एक मशीन पे आपको कई मशीनें नजर आ गई, ठीक है। अब हमने करना ये है कि पुटी को आपके सामने लेकर आना है। तो ये मैंने कहा पुटी डाउनलोड फॉर विंडोज, और यहां पे लेडीज एंड जेंटलमैन, दिन के वक्त ये ऑपरेटिंग, ये नेटवर्क इतना फास्ट होता है कि आदमी एज्यूम नहीं कर सकता। एनीहाउ, तो यू कैन सी हियर लेडीज एंड जेंटलमैन putty.org, www.putty.org। मैं इसको क्लिक करता हूं। देयर इज समथिंग इन चैट। हम तो डाउनलोड नहीं करेंगे ना। अगर कर लो तो अच्छी बात है हदीका, करना तो पड़ेगा। अभी करो या 10 मिनट के अपने फ्री टाइम में करो, करना मस्ट है। क्योंकि अगर किसी वक्त आप यूनिवर्सिटी आके रियल हार्डवेयर के साथ काम करते हो तो आपका ये पहले से इंस्टॉल्ड होगा, यू कैन वर्क। ऑल माय स्टूडेंट्स आर हियर and I share my screen back and I show you that the recording is already in presence. So you can see download putty. So you can click here the download putty, and it is a very small okay,
पुट्टी पे तो कॉन्फ़िगरेशन होती है सर। सर अपने स्विच को अटैच किया, HDA हैव हुआ, किया हुआ। पुट्टी से कॉन्फ़िगरेशन होती है, यस सर अपने स्विच को अटैच किया हुआ। जब हम स्विच पे अटैच करेंगे तो इसके अभी मुझे 2-4 मिनट दो हदीका, आई रिस्पॉन्ड यू, ओके, जस्ट गिव मी मोर, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास आ गया कि इफ यू वांट इट फॉर विंडोज टेल मी दैट वेदर इट इज 64 बिट और 32 बिट। इफ यू वांट टू यूज इट फॉर लिनक्स, दिस इज द पाथ। Is it right? So because my system is 64 bit, because my system is 64 bit, I will install the first one, putty 64-0.78-installer.msi। जब ये आप अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, just click it, it is just like an exe file, टक टक टक, next install। बात समझ आ गई? अब आप क्या करेंगे कि एक तरफ तो बस इसको ऑन कर दें और जस्ट पावर देनी है स्विच को। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे मैं एक दफा फिर लेकर आता हूं, स्क्रीन का शेयर स्क्रीन है कि नहीं? नहीं है, लेकिन मैं खत्म कर रहा हूं। और आपको एक चीज और बता रहा हूं कि स्विच में एक अदर ये पावर केबल की जगह है, तो मुझे पावर केबल दे दें, इधर ही लगा दें। ये पावर केबल मैंने यहाँ पे लगा दी, यू कैन सी, ये देख लें, पावर जैसे कंप्यूटर की आम केबल होती है, कोई इसमें स्पेशल केबल नहीं है। और ये मैंने यहाँ लगा दी, ये देखें मैंने यहाँ पे लगा दी। छुई लगाई, आप इसको सकेंगे। माइक ऑन है, प्लीज ये ऑफ कर दें। ओके, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे या ये केबल खराब है, दूसरी ले और इसको गिरा दो। ये जी केबल हमने लगा दी। नहीं देखना, क्या आपको नहीं नजर आ रहा हदीका? हाँ जी बिल्कुल, ब्लैक स्क्रीन है। ओके, आई क्या ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है तैयब, हसन और जैन को भी, कायनात को भी? हेलो सर अभी तक ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, अभी ठीक हुआ। अब ठीक हो गया? पहले ब्लैक स्क्रीन थी, अभी दोबारा आ गई। ब्लैक स्क्रीन है, अभी ठीक हो गया सर। चलें जी, नाइस। तो आपको नजर आया कि मैंने इसको पावर दी हदीका, और यहाँ पे फ्रंट पे अगर दिखाऊं तो देखिए ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है iOS, जैसे विंडोज का 10 है ना, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, विंडोज 9, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है iOS। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन इस कोर्स में नहीं। एडवांस कोर्सेज में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे iOS XE, iOS XR, NXOS। तो there are other operating systems are as well, which are used in different devices, but the operating system which are in this switch is iOS, Internet Working Operating System. This is the proprietary operating system of Cisco. Is there any question, anyone, ladies and gentlemen? Shabash. Is there any question? नो क्वेश्चन जी। तो मैं आपको आपकी ओके, अब ठीक है, तो डेट्स नाइट कायनात, पहले ब्लैक थी अब नहीं है, तो डेट्स नाइस। ओके, अब हम कम ऑन प्लीज, कम ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची।
चलें, अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही तो मैं इस बात को रिपीट करता मैं रिपीट कर देता हूं और साथ ही शेयर भी करता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आपके, और अगर ये क्वेश्चन आपका कुछ और हो तो यू कैन इवन टॉक और इवन राइट ऑन द चैट कि इस जो मैंने अभी आपके सामने स्विच रखा जो कि 2960 कैटलिस्ट स्विच है जी, कैटलिस्ट स्विच है। ये हर डिवाइस के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका iOS है और इसका वर्जन वगैरह अभी हम चेक करेंगे। जी जेंटलमैन, यही क्वेश्चन था या कुछ और? यही क्वेश्चन था या कुछ और? बोथ आई एम आस्किंग दी ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल, जो भी स्टूडेंट है। यस सर। यही था। नाइस जी। तो जेंटलमैन, यस सर, ये अब वेरी नाइस जी। अब मैं ये करता हूं कि इस अपने स्विच की जो केबल है, कंसोल केबल, ये अभी मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे दिखाता हूं, जिसका दूसरा एंड आपको पता है कि अब सीरियल से यूएसबी बन चुका है। अब इसका जो जो पहले ये सीरियल था, अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि वो यूएसबी बन गया है। मैं इस यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगा देता हूं, कोई मसला नहीं। इसके लिए मुझे ये मैंने लगा दिया आपका स्विच, इसके साथ स्विच लग गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पुटी जो अभी मैंने इंस्टॉल किया आपके सामने, मैं उसको सामने लाता हूं। कैसे सामने लाता हूं, ये मैं अब स्क्रीन को एक दफा फिर शेयर कर रहा हूं और मैं यहां पे आपको नजर आ रहा है कि मैं पुटी लिखता हूं सर्च में, PUTTY, क्योंकि मेरा इंस्टॉल्ड है। मैं इसको करता हूं ओपन। देखिए जी, अब ये मुझे सिर्फ एक इंटरफेस दे रहा है, बाकी पुटी का कोई काम नहीं है। यानी जो कमांड मैं यहाँ पे दूंगा अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, वो थ्रू दिस कंसोल केबल स्विच के पास पहुंच जाए। अब आपको पता है कि मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, SSH कोडिंग एज वेल। ओके, तो आप देख सकते हो कि अभी मैंने अपनी इस पुटी को कहा कि SSH से मुझे नहीं कनेक्ट होना, मुझे सीरियल केबल से होना है। मुझे सीरियल केबल, याद रखो, सीरियल केबल जिस पोर्ट के ऊपर कनेक्ट होती है उसको कहते हैं कॉम पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट। अब ये मुझे बता रहा है कि जी आप कनेक्ट हो रहे हैं शायद कॉम 1 से, लेकिन मुझे नहीं पता कि आई एम कनेक्टिंग विद कॉम 1 और नॉट। फॉर दिस, ladies and gentlemen, I will be going to the device manager. I will be going to the device manager. देखें जी, वहां से देखते हैं कि मैं किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड हूं। वो पोर्ट मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। अभी देखें, ये मैंने ओपन किया और मैं डिवाइस मैनेजर पे चला गया और डिवाइस मैनेजर पे मैंने ये पोर्ट्स में जाके देखा तो पता चला कि मेरा ये सीरियल पोर्ट कॉम पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्टेड है। किस पोर्ट पे? 3 पे। तो मैं इस 1 को 3 कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कॉम टू पोर्ट 3 पे मैं कनेक्ट हो रहा हूं, और इसको कहता हूं ओपन। मैंने इसको कहा ओपन। देखें जी, अब ये मुझे कुछ देर में इस स्विच के ऊपर इसको लैंड करवा देना चाहिए। यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं, मैं उतनी देर में इसको देख लूं। व्हाट इज SSH? SSH मीन्स सिक्योर शेल। ओके, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट रिमोट डिवाइसेस। यस, आई होप के कायनात को जवाब मिल गया कि SSH एक प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योरली रिमोटली आपको कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त आप अपने ऑफिस में बैठी हुई और ये स्विच जिस पर मैं काम कर रहा हूं ये UET में लगा हुआ है। अगर मैं आपको इस पे SSH कॉन्फ़िगर कर दूं और इसको एक IP दे दूं जो कि एक पब्लिक IP हो, तो आप अपने ऑफिस से बैठ के इसके ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन टास्क कर सकते हैं। डू यू गॉट द आंसर अधिका? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रिमोट डिवाइसेस। बिल्कुल। ओके, नाइस।
अब देखो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्विच और उसके आगे ये ग्रेटर का साइन। अगर आपको ये इस वक्त स्विच का नाम है, यानी कि आपके पास आपकी कंपनी में अगर 1000 स्विचेस भी हैं, सबका नाम स्विच है, आपने उसको तब्दील करना है, अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना है। जैसे देखे ना, किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम बच्चा होता है, यानी हर घर में पैदा हुआ वो बच्चा है या बच्ची है, लेकिन आप उसको नाम देते हो टू मेक हिम और हर नोन। तो इसका भी हम नाम अभी देंगे। बात समझ आ गई? लेकिन एक चीज आपको समझ आ गई कि थ्रू कॉम पोर्ट 3 बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर पुटी आई एम कनेक्टेड टू द स्विच नाउ। जो कुछ भी मैं यहां करूंगा वो यहां पे इसके प्रोसेसर पे नहीं होगा, वो स्विच के प्रोसेसर पे के एग्जीक्यूट होगा। कुछ बात समझ आ रही? ठीक है, ओके। ये तो हो गया एक एंड। देयर इज समथिंग इन दी हेयर एज वेल। सर इशू है, आवाज बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। क्या हदीका के अलावा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है ऑनलाइन, मेरी आई थिंक हदीका इशू इज ऑन योर साइड, माइट बी, लेकिन आई एम स्लो। आई विल प्रोवाइड, अगर आपको कोई मसला हो तो यू कैन कनेक्ट एट वट एवर टाइम यू फील मोर रिलैक्स्ड, वी कैन रिपीट दीज थिंग्स। I will provide you this ऑनलाइन लेक्चर एज वेल। आप उसको देखें, सुने। अगर कहीं भी आपको चीजें क्लियर नहीं होती, द व्हाट्सएप ग्रुप इज देयर, और वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा सेशन ऑन द सेम एज वेल। समझाना हमने है आपको, चाहे किसी भी कीमत पे हो। और अगर आप पेशावर में हैं तो हम आपको यहाँ बुला भी सकते हैं कि छुट्टी के वक्त आ जाओ और इस पे काम कर लो। ठीक है हदीका? आर इन पेशावर और आउटसाइड पेशावर? ओके, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। पिंडी, ओके 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 ओके। तो चलिए, लेकिन मसला नहीं, जब भी कोई हम इसको किसी भी तरीके से, अभी मेरी आवाज आपको आ रही है? तो विच मीन्स हमारी ये क्लास सिर्फ केपी में नहीं है, पंजाब में भी सुनी जा रही है। नाइस, वी वांट समथिंग लाइक दिस। ओके, वी कंटिन्यू जी। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तरफ मैंने ये इंटरफेस ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, एक और काम भी करता हूं साथ में पैरेलल में, ताकि आपका ये खौफ खत्म करूं कि स्विच का फिजिकल होना जरूरी है। देख लेते हैं, अगर जरूरी है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और अगर जरूरी नहीं है तो बस फिर आप खुश रहें। तो मैं फॉर अ टाइम बीइंग इसको खत्म कर देता हूं और अपने पैकेट ट्रेसर को, सिस्को पैकेट ट्रेसर को भी क्लिक कर देता हूं। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टार्ट हो रहा है, तो कम से कम जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ये काम तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने डे 1 से आपको कहा हुआ है पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो। लेकिन फिर भी अगर कोई इशू है, आई एम अवेलेबल, काजी इज अवेलेबल, तो वी कैन हेल्प यू कि आप ये चीज डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दें। है इस वक्त कोई स्टूडेंट जिसने अभी तक ये टूल ना ही डाउनलोड किया है ना ही इंस्टॉल किया है? इज देयर एनीवन फिजिकल स्टूडेंट जिसने आपने नहीं किया? आपने भी नहीं किया? तो काजी, आज इनको आप जाने ना दें, ठीक है? ये यहां बैठ के डाउनलोड भी करें और इंस्टॉल भी करें, ठीक है? 10-15 मिनट लगेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इज देयर एनीवन? 2-3 स्टूडेंट हमें फिजिकल तो मिल गए, क्या कोई ऑनलाइन स्टूडेंट भी है जिसका ये इशू है, जिसके पास नहीं है, ना ही उसने अभी तक पैकेट ट्रेसर डाउनलोड किया है, ना ही उसने इंस्टॉल किया है? जब डाउनलोड नहीं किया तो इंस्टॉल कैसे किया होगा? तो है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट में भी? नो सर। नाइस, तो विच मींस ऑनलाइन वाले जीत गए, उन सब ने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी आप लोग क्लास खत्म हो तो अपने काम के साथ साथ ये टास्क भी कोशिश करें करके जाए, ठीक है? एनी आओ जी, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए? एक अदद स्विच, नंबर 2 एक अदद कंसोल केबल, और एक अदद कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप। 3 चीजें चाहिए। देखें जी, मैं यहाँ पे मेरे पास हैं। सबसे पहले मैं
आप ये मैंने एक वही स्विच 2960 का स्विच जो मैंने अभी आपके सामने आपको फिजिकली दिखाया, वही स्विच मैंने अपने कैनवस पे रख लिया, एक चीज। दूसरा, मुझे कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए, मैंने पीसी रख लिया, तो ये भी हो गया। थर्ड, मुझे एक अदद केबल चाहिए। कौन सी केबल? तो देखो मैंने इस ब्लू के ऊपर रखा अपना कर्सर, तो नीचे लिखा हुआ क्या आ गया है? कंसोल। इसका मतलब ये कंसोल केबल है। तो मैं ये कंसोल केबल यहां से लेता हूं, पीसी पे ले गया लाजमी तौर पे, क्योंकि हम कनेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर RS-232 की कनेक्टिविटी है। तो मैंने इसको क्लिक किया और दूसरे तरफ गया स्विच पे। स्विच की कौन सी केबल पे, कौन से पोर्ट पे लगाऊं? कंसोल पोर्ट पे। तो देखें जी, कंसोल पोर्ट पे लगा दिया, हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, इस स्विच पे क्लिक करके कॉन्फ़िग में जाकर, सॉरी CLI में नहीं जाना चाहता, एट्रीब्यूट्स, फिजिकल, पीसी से जाऊंगा। पीसी पे पुटी होता है, पीसी पे गया और इसकी पीसी के मैं कॉन्फ़िग में जाके, डेस्कटॉप में जाके और टर्मिनल पे चला जाऊंगा। मैं इसके डेस्कटॉप पे जाके टर्मिनल पे चला जाऊंगा और टर्मिनल को देखें उसी तरह 9600 वही सब कुछ जो पुटी में था और ओके कर दिया। देखो कि ये अब क्या मुझे दिखाता है, ये इस वक्त देख लो यहां पे कहता है प्रेस। एक चीज और भी देखते जाओ शिजात, यहां पे देखते जाओ, ये स्विच आपका राउटर जो है ये 2960 है और इस पे जो वर्जन iOS का इंस्टॉल्ड है वो 15.0 है ना जी। और क्या कहता है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। रिटर्न का मतलब है इंटर, इसका मतलब है कहता है इंटर प्रेस करो। अब मुझे आप थोड़ा सा ये बताओ कि इन दोनों में कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? देख लो, कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? यहां भी स्विच, यहां भी स्विच, यहां भी ग्रेटर का साइन, यहां भी ग्रेटर का साइन। जी ऑनलाइन फेलोज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या कोई आपको दोनों में, ये वाला मेरा सिमुलेटेड वर्जन है और ये वाला मेरा प्रैक्टिकल मेरा वर्जन है, कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? तो बात करो मेरे साथ। नो डिफरेंस सर। नो डिफरेंस। तो अब मैं इधर भी कमांड दूंगा और इधर भी दूंगा। इस वक्त मैं ये बताता चलूं कि ये ग्रेटर देन का साइन का मतलब ये होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं किस मोड में हूं। ये मैं पहला जो मोड मैंने लिखा था यूजर एग्जिट मोड, मैं इसमें हूं। मैं इस वक्त इस मोड में हूं। रेड को मैं इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे क्लियर नजर आए। सॉरी, यूजर एग्जिट मोड, मैं इस मोड में हूं। सेकंड काम, मैं इस मोड से नंबर 1 ऑलवेज जब भी मैं सिस्टम ऑन होगा मैं यूजर एग्जिट मोड में हूं। मैं यहां से यहां कैसे जाऊंगा, यहां से यहां कैसे जाऊंगा और वापस कैसे जाऊंगा, तो हमारा ये टास्क है। ठीक है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, दोनों पे करते हैं ताकि हमें नजर आए कि अगर कोई मसला है तो हम उसको रिजॉल्व कर लें और अगर नहीं है तो खुश रहें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओके, अब मैं ये यहां कमांड देता हूं एनेबल, ENABLE। क्या कमांड दी? एनेबल। इंटर करता हूं, मुझे बताएं कि क्या चेंज आया। ग्रेटर का साइन किस में तब्दील हो गया? हैश में। हो गया ना। इसी तरह यहां पे करके देखते हैं, यहां पे करके देखते हैं, यहां भी लिखता हूं एनेबल, इंटर करता हूं,
देखो ये भी हैश में चला गया। इसका मतलब जो वहां करता हूं यहां करता हूं, इट इज एग्जैक्टली द सेम। इसका मतलब अब मैं प्रिविलेज मोड में चला गया हूं। किस मोड में चला गया हूं? प्रिविलेज मोड में। वापस जाना चाहूं, एग्जिट लिखो, EXIT। वापस जाना चाहता हूं, एग्जिट लिखो। देखो ये मैंने एग्जिट लिखा, देख लो वापस उसी हालत में चला गया। यहां पे भी देखो एग्जिट लिखता हूं, वापस एग्जैक्टली उसी हालत में चला गया। देख लो। तो आगे जाने के लिए नेबल, वापस आने के लिए एग्जिट। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? क्या मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट मेरे से नो कनेक्टेड सर। है? ओके नाइस। तो मैं दोबारा यहां आकर लिखता हूं एनेबल, इंटर किया तो मेरा हैश आ गया, और यहां भी एनेबल लिखा तो मेरा हैश आ जाना चाहिए, आ गया। इसका मतलब मैं प्रिविलेज मोड में चला गया हूं। किस मोड में चला गया हूं? प्रिविलेज मोड। इसके अलावा अगर मैं यहां कमांड लिखता हूं कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, क्या लिख रहा हूं कमांड? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इंटर करता हूं, देखो क्या फर्क पड़ा मुझे जरा बताइएगा, मुझे अच्छी तरह से नजर नहीं आता। ब्रैकेट में कन्फिग आ गया। इसका मतलब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में पहुंच गया हूं। किस मोड में पहुंच गया हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, सिमुलेशन में। प्रैक्टिकल में भी देखते हैं, हार्डवेयर पे भी देखते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इंटर करता हूं। देखो यहां पर भी एग्जैक्टली वही काम हुआ, स्विच के साथ हो गया कन्फिग। इसका मतलब अब मैं कौन से मोड में हूं? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। वापस जाना चाहो, एग्जिट करता जाओ। वापस जाना चाहो, एग्जिट करो। दोबारा आना चाहो, फिर लिखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी कहा कि आपके पास तो हो सकता है 100 स्विचेस हो। अगर 100 स्विचेस का नाम स्विच है और आप रिमोटली काम कर रहे हैं, तो क्या पता चलेगा कि कौन से स्विच पे मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं? कभी भी आप श्योर नहीं होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उनका नाम मीनिंगफुल रखें। मिसाल के तौर पे अगर ये स्विच इलेक्ट्रिकल में लगा हुआ है तो SW इलेक्ट्रिकल, पता चलेगा ये इलेक्ट्रिकल। जी जी, क्वेश्चन आया मुझ पे तो मैं उसका जवाब दे दूं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? ओके हदीका, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अगर मैं कोई तब्दीली करना चाहता हूं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस में, तो आई शुड बी हियर। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं इसका, कैन यू गिव मी द नेम ऑफ योर कंपनी वेयर यू आर वर्किंग? शाबाश जी। ऑन दिस दीज रियल सॉल्यूशंस। मिसाल के तौर पे ये स्विच रियल सॉल्यूशंस में लगा हुआ है, तो द नेम ऑफ द स्विच शुड बी रियल सॉल्यूशंस। देन मतलब अगर सबका नाम स्विच हो एंड यू आर कंसल्टेंट टू 100 डिफरेंट कंपनीज, यू आर मैनेजिंग देयर 100 डिफरेंट स्विचेस, तो सबका नाम स्विच हो तो इट इज टोटली इम्पॉसिबल टू। एंड डेफिनेटली अगर आप उनकी कंसल्टेंट है तो दूर से बैठ के काम करेंगी। आजकल तो जमाना भी है वर्किंग फ्रॉम डिस्टेंस। मतलब मैं आपको इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं आपके IEEE के जो वो हैं, और हम अपने कंप्यूटर सोसाइटी वालों को भी शामिल करेंगे इसमें। और मजे की बात यह है कि जिसको हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जिसको जो आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताएगा, लास्ट 13 ईयर से इज वर्किंग इन फिनलैंड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही हैज वर्कड विद द नोकिया। वो कहते हैं मोस्टली मैंने रिमोटली काम किया है, मैं अब भी पाकिस्तान में हूं, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। तो यू डू रिमोट वर्क, तो यू शुड हैव द राइट नेम्स। डू यू गॉट द आंसर अधिका? तो क्वेश्चन इस वक्त यह है कि किस तरह मैं इसका नाम तब्दील करूं। तो अब देखें जी, मैं नाम तब्दील कर सकता हूं या नहीं कर सकता, अभी बताता हूं जी। सो आई राइट हेयर होस्ट नेम, यहां पे मैं लिखता हूं कमांड
होस्ट नेम, और जो नाम मैं देना चाहूं, जैसे अभी आपने कहा रियल सोल्यूशन, मैं इसका नाम रियल अंडरस्कोर सोल्यूशन SOLN लिख देता हूं, रियल सोल्यूशन SW, रियल सोल्यूशन स्विच। देखो जो ही मैंने इंटर किया, देखिए इस स्विच का नाम क्या हो गया है, रियल। अब इसका स्विच नाम नहीं रहा, इसका नाम रियल सोल्यूशन स्विच बन गया है। इसी तरह मैं यहां पर भी यही कमांड रन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे देता हूं कमांड होस्ट नेम, और इसका नाम रखता हूं मैं रियल अंडरस्कोर SOLN सोल्यूशन अंडरस्कोर SW। देखो अब इसका नाम स्विच नहीं रहा, मीनिंगफुल नेम हो गया है। यू गॉट द आंसर कि क्या मतलब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस में मैं जो कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहता हूं, जो स्विच में मैं तब्दीलियां लाना चाहता हूं, वो यहां से लाऊं, इस मोड के जरिए मैं लाऊंगा। ओके नाइस। पहला काम, आज का हमने पहला काम ये किया कि 3 मोड सीखे, एग्जिट मोड, यूजर एग्जिट मोड, देन प्रिविलेज मोड, एंड फाइनली द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और हमने एक कॉन्फ़िगरेशन करके भी देख ली कि अब इस स्विच का नाम स्विच नहीं रहा, इसका नाम हो गया रियल सोल्यूशन स्विच। शो की कमांड चला सकते हैं। अगर आपको अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये किया गया कि हम प्रिविलेज मोड में क्या कर सकता हूं, बड़ा ही अच्छा इसका सिंपल जवाब देता हूं। यहां से मैं एग्जिट करता हूं, मुझे ये क्वेश्चन किया मंसूर ने, मुझे मंसूर का क्वेश्चन का जवाब नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा सिर्फ। इसने मुझे बता दिया कि ये काम आप इस मोड में कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो, आप क्लॉक को सेट कर सकते हो, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, DIR कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो ये सारे काम मैं कर सकता हूं जब मैं प्रिविलेज मोड में। अब अगर मैं यहां लिखता हूं कॉन्फ टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटर करता हूं, अब मैं यहां क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। बात समझ आ गई? जिसमें अभी एक कमांड मैंने आपके सामने चलाई, होस्ट नेम, सेट सिस्टम्स नेटवर्क नेम। जवाब मिल गया? ओके, तो हमने इसका नाम रख लिया। अब ये नाम कहां पे स्टोर हुआ, तो जब नजर आ रहा है तो याद रखो कि जो हमारे ये स्विच हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सेस स्विचेस, एक्सेस स्विचेस, जो मैंने अभी आपके सामने 2960 कैटलिस्ट स्विच का नाम आपको बताया, जो कि ये स्विच है। याद रखो लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये स्विच के 2 स्टोर्स हैं, जिसमें ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन की चेंजेस आप करते हो वहां पे ये स्टोर होगा। कितने स्टोर्स हैं? 2। जैसे आपके नॉर्मल कंप्यूटर में भी 2 स्टोर्स होते हैं। कौन कौन सा? SD और हार्ड ड्राइव। मैं ये कहूंगा SSD भी हार्ड ड्राइव के तौर पे ही काम करती है। तो एक आपकी हार्ड ड्राइव है जो परमानेंट है, और एक आपकी रैम है जो कि नॉन परमानेंट है, वोलेटाइल है। तो यहां पर भी 2 स्टोर्स हैं, एक को कहते हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरे को कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप देखना चाहें कि मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या कुछ है, जैसे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट लाइक योर रैम। तो अगर इसको देखना है तो यहां से करो एग्जिट, और अभी मैंने कहा शो की कमांड यहां से चलती है, कमांड दो शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग, शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग। चेक करते हैं, इंटर करते हैं। देखो ये बता रहा है कि जी इसमें वर्जन ये है। देखें जो अभी हमने तब्दीली की वो यहां पे नजर आ गई। हमने होस्ट नेम की कमांड दी और स्विच का नाम रियल सोल्यूशन स्विच रख दिया, रियल सोल्यूशन स्विच रख दिया।
इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, इसलिए यहां पे कुछ नहीं। ऐसा ही है ना। मोर में जाके अभी देखें, इसकी इंटरफेसेस के बारे में बता रहा है कि इसकी एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1, 0/2, 0/3 अप टू 13, फिर 14 अप टू 24। तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं। कौन सी पोर्ट्स हैं? फास्ट इथरनेट। इसके अलावा इसमें 2 गीगाबिट पोर्ट्स हैं। इसमें देखो कंसोल पोर्ट भी नजर, लाइन कंसोल भी नजर आ रही है। इसमें वीलैन भी नजर आ रहा है। बात करेंगे इन सब के ऊपर। तो ये इसकी क्या है, जो अभी आप एंड हुआ गया, ये जो कुछ आपको मैंने अभी दिखाया, कौन मुझे बताएगा मेरे ऑनलाइन में से, मैंने आपको कौन सा स्टोर दिखाया? रनिंग कॉन्फ़िग। कौन सा स्टोर दिखाया? रनिंग कॉन्फ़िग। रनिंग कॉन्फ़िग स्टोर। दोबारा कमांड वही देता हूं, शो रनिंग config. There is something in the chat, and the chat is saying, yeah, I explained. Hadika, as I explained earlier, running is like your RAM, which means volatile, and your startup is permanent. That is the difference. और याद रखो कि जूही, आपको पता है, जब आप अपने लैपटॉप को ऑफ कर देते हो, चाहे वो बिजली चली जाए या कुछ भी हो जाए, आपकी रैम में जो कुछ होता है वो लॉस हो जाता है। इसका मतलब है कि इसी तरह रनिंग कॉन्फ़िग में भी जो कुछ है वो लॉस हो जाएगा। यानी अगर इस वक्त मेरा स्विच बंद हो जाए किसी भी वजह से, ये भी जो मैंने नाम तब्दील किया ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टार्टअप में ये चीज सेव कर दूं, फिर ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट हो गया है। डू यू गॉट द आंसर अधिका? नाइस। तो आपने शो रनिंग कॉन्फ़िग दोबारा देखना है, देख लो, वो एग्जैक्टली वही सब कुछ है जो आपने अभी देखा कि इसका नाम तब्दील है, बाकी कोई तब्दीली नहीं। बाकी कोई तब्दीली नहीं। अब मैं एक और कमांड यहां दे रहा हूं, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। शो स्टार्टअप डैश कॉन्फ़िग। आज आपने होस्ट नेम, शो रनिंग, शो स्टार्टअप, 3 कमांड्स अभी तक आप देख चुके। देखिए मैं इंटर करता हूं, क्या कहता है, क्या जवाब आया? नॉट प्रेजेंट। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक मैंने उसमें कुछ सेव ही नहीं किया। मैंने उसमें अभी तक कुछ सेव ही नहीं किया। तो इसको सेव करने के लिए क्या अगली चीज सीख लो, कॉपी। किसको कॉपी करना चाहते हो? रनिंग कॉन्फ़िग को। और कहां करना चाहते हो? स्टार्टअप में। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। जी, एनीवन फ्रॉम दी फिजिकल क्लास, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? एनीवन फ्रॉम दी? लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट में सिर्फ हदीका क्वेश्चन करती है, बाकी सब या तो उन्होंने उसको अपना सीआर बना लिया हुआ है या फिर क्वेश्चन नहीं करना चाहते। तो क्या 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 मूड है? क्या मैं ये समझूं कि हदीका इज द सीआर, वो सिर्फ क्वेश्चन करती है, या बाकी लोगों को दिल नहीं चाहता? जी, कायनात, मोहसिन, हसन, तैयब। नो क्वेश्चन सर। शाबाश जी। तो आपने देखा, समझ आ रही है। वेरी नाइस, समझ आ रही है तो अच्छी बात है। तो देखें, मैंने अब इसको कहा कॉपी कर दो, किसको? रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप में। ये मुझसे पूछ रहा है क्या नाम दूं, क्या स्टार्टअप नाम ही दे दूं? बिल्कुल, डिफॉल्ट नेम यही है। मैं इस नाम से इसको सेव कर दिया। तो इसने मुझे क्या किया? बिल्डिंग यानी कर रहा है, और फिर ओके कह दिया। इसका मतलब जो मैं करना चाह रहा था सक्सेसफुली हो गया। जो मैं कर रहा था वो सक्सेसफुली हो गया। चेक कर लेते हैं, हो सकता है झूठ बोल रहा हूं। शो स्टार्टअप, शो स्टार्टअप। देखो वही सब कुछ जो आपके रनिंग में था वो आपके स्टार्टअप में आ गया। अब अगर ये स्विच में कोई बंद भी हो जाए, आई एम सेफ, क्योंकि स्टार्टअप में ये चीज सेफ है।
अब जब दोबारा ये मशीन ऑन होगी तो स्टार्टअप से, जिस तरह के आपके हार्ड डिस्क से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के कहां पे आ जाता है, रैम में। तो यहां पर भी ये स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी और इसी तरह ये आपका डिवाइस काम करेगा। यानी जो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए हैं वो मौजूद रहेंगी। बात समझ आ रही? तो आपने सीखा कि किस तरह आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में ले जा सकते। एक चीज और, शायद आखिरी आज के लिए, एक और भी यहां पे मेमोरी है, एक और भी यहां पे स्टोर है जिसका नाम है फ्लैश। वो भी परमानेंट है। ये वो फ्लैश नहीं है जो कि आप लोग यूएसबी को कहते हो, नहीं, यहाँ पे एक स्टोर का नाम है, परमानेंट स्टोर का नाम है जिसका नाम है फ्लैश। और अब मैं उसको देता हूं शो फ्लैश। चेक करो इसमें कुछ है, चेक करके मुझे बताओ क्या इस फ्लैश में कुछ है? है दो चीजें हैं, एक ये और एक ये। नहीं, रिसाइकल बिन किसने कहा है? जी नहीं, वो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है, योर नेम अब्बास। अच्छा, एक अब्बास उधर है, एक अब्बास इधर भी है। अच्छा, तो अब्बास, जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी की है वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव हुई थी टेम्पररीली। मैंने उसको परमानेंटली अपने स्टोर कर दिया स्टार्टअप में। फ्लैश के साथ अभी तक मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। यू गॉट इट? यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पड़ी हुई है और वो ये, और वो ये। कौन है जो मुझे बताए कि क्या है? अनम के साथ कौन बैठा है? महरोज। महरोज क्या है ये? कोई भी तुक्का मारे। स्विच का नाम। ओके, यहां पे मुझे चैट में कुछ मिला है, मैं देखता हूं कि हो सकता है स्विच वर्जन। स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज है जो मैं बार बार कहता था, iOS, वो यहां पड़ा हुआ है। वेल डन अलीशा। अलीशा यार, अलीशा, वेल डन अलीशा। जो स्विच का इमेज पड़ा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये, इसलिए इस कोर्स में नहीं, लेकिन अगले कोर्सेज में हम आपको इसका बैकअप लेना सिखाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग ये किसी वक्त भी करप्ट हो सकता है या कोई जानबूझ के इसको डिलीट कर सकता है। तो आपका स्विच तो गया, फारग हो गया। तो लेकिन अगर आप एक अच्छे वर्कर हैं तो आपने इसका बैकअप कहीं पे ना कहीं सेव किया होगा। तो आप कहेंगे तुम डिलीट कर गए हो, नो वरीज, मैं अभी 5 मिनट में वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे दोबारा लोड कर देता हूं या कर देती हूं और आपका स्विच दोबारा। अदरवाइज ये स्विच अगर आप कबाड़ी को दें तो 500 रुपए से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये हजारों रुपए की चीज है। Got it? इसके अलावा जो अभी मैंने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रखी ना, इसकी भी बैकअप लेना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हो सकता है आपकी स्टार्टअप को ही उड़ा दे। तौर पे आपका एक रनिंग स्विच है, उस पर आपने पिछले 2 साल से वो काम कर रहा है, आपने कई कॉन्फ़िगरेशंस की होंगी, जुबानी तो आपको याद नहीं है, हो ही नहीं सकती। अगर आपने उसका बैकअप लिया हुआ है, कोई उड़ा भी दे, नो वरीज, विद इन 2 मिनट्स रिकवर करो और को जो तुमने करना था कर लिया, वेल एंड गुड। मैंने अपने डिवाइस को दोबारा प्रॉपरली आप कर लिया है, एग्जैक्टली उसी तरह। तो एडवांस कोर्सेज में जाके फिर हम आपको ये भी सिखाते हैं कि किस तरह आप स्विच से अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को सेव करते हो, बैकअप लेते हो, किस तरह आप ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेते हो, किस तरह आप राउटर से लेते हो, किस तरह आप फायरवॉल से लेते हो। ये सारी चीजें हमने सीखनी होती। तो कम से कम टारगेट क्लियर हो कि कल ये नहीं, हाँ इसके अलावा एक और चीज, इसके ऊपर अभी हम पासवर्ड लगाएंगे।
तो अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, लाजमी तौर पर वही लगाएगा। कल अगर वो कहता है कि जी तनख्वाह बढ़ाओ, आपका बॉस कहता है नहीं बढ़ाता, कहता है कल से नहीं आऊंगा, चला आके दिखाओ, तो सारे सारे उसके स्विचेस के तमाम डिवाइसेस के पासवर्ड तो उस साहब के पास हैं, और आपको चार्ज मिल गया कि जी आपकी सैलरी बढ़ गई है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी मुझे उससे कोई मिनते मिनते करें, कोई उसको चाय माय पिलाएं, खाना खिलाएं कि मुझे पासवर्ड दिखाए? नहीं, आप उसको क्रैक करोगे, रिकवर करोगे। आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कहोगे जाओ तुम घर में बैठो, मुझे एक आधा घंटा घंटा अपने रूम में रहना है, और आधे घंटे घंटे में आप सारे पासवर्ड्स रिकवर कर जाओगे। तो ये भी एडवांस कोर्सेज में इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बात समझ आ रही? तो देयर इज समथिंग इन द चैट, मे आई आंसर दिस फर्स्ट? स्विच की हर पोर्ट पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। कह सकते हो यस और कह सकते हो नो। इस तरह कायनात जो दैट्स ग्रेट कि कायनात ने क्वेश्चन किया, अदरवाइज तो क्वेश्चन सिर्फ अतीका करती है। तो कायनात आपकी मर्जी है कि आप इस वक्त ये तमाम के तमाम 26 पोर्ट्स सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन आप इनकी इसलिए तो आपको हायर किया गया है कि आपने इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। मिसाल के तौर पे आप इनके डिफरेंट वीलैंस बनाते हैं, तो हर वी मिसाल कुछ पोर्ट वीलैन 1 का वैसा होंगी, कोई 10 के होंगे, कोई 20 का होंगे। इसी तरह आप यहाँ पे कोई पोर्ट सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ पोर्ट्स को बंद करना चाहते हो, कुछ पोर्ट को खोलना चाहते हो, ऑल यू कैन डू। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि सब पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन सेम होना जरूरी हरगिज नहीं। देयर इज एक हैंड रेस था अभी तक, लेकिन यस सर, प्रॉब्लम मैं वक्त तैयब मोहम्मद जी, तोयब शाह। तैयब यस शाह सर। क्वेश्चन करें। सर, ये हमने अभी तक ये जो शो स्टार्टअप किया, शो रनिंग और शो प्लेस, ये जो सारे कमांड हमने दिए, तो ये हमने प्रिविलेज मोड में दिए, ये हम कोई किसी और मोड में भी दे सकते हैं? नहीं, मैं अभी ये कहूंगा नहीं, और बाद में उसका तरीका भी बता दूंगा कि आप किसी और मोड में भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं कहूंगा नहीं। अगर मिसाल के तौर पे देखो, मैं आपको करके बताता हूं। मैं यहाँ पहले तैयब चला जाता हूं, मैं यहाँ पे चला यहाँ से एग्जिट कर जाता हूं, ये एग्जिट कर गया, और यहां पे मैं कहता हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग डैश कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग इंटर किया, क्या कह रहा है? ओके ओके, इसके अभी क्वेश्चन ये, अच्छा तो तैयब आपको सवाल का जवाब मिल गया? यस सर, यस सर। ओके, वीलैन का बताएंगे, और शो भी करेंगे, शो भी करवाएंगे। करवा तो मैं देता हूं, लेकिन इस कोर्स का ये, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आई एम, इट इज नाइस, लेकिन मिसाल के तौर पे, लेकिन ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनेबल, मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये जस्ट अधिका ने ऐसे क्वेश्चन किया तो मैं शो वीलैन ब्रीफ, तो ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर वीलैन 1 है, वीलैन 1002 है, 3 है, 4 है, 5 है, हम और तमाम की तमाम पोर्ट जो है वो वीलैन 1 का हिस्सा है। हमारा जो सेकंड कोर्स है, जो इज अबाउट द स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल, उसका पहला पार्ट इन्हीं के ऊपर है कि हम मुख्तलिफ वीलैंस क्रिएट करते हैं, उनको मुख्तलिफ पोर्ट्स देते हैं, उनको मुख्तलिफ आईपीज देते हैं, उन पे राउटिंग करवाते हैं, जिसको इंटर वीलैन राउटिंग कहते हैं। तो वो हमारे सेकंड कोर्स का हिस्सा है जी हदीका। लेकिन ये पता चलता है कि हदीका को आइडिया है जी। एनीवन एल्स? देयर इज चैट, ओके नाइस। अब आखिरी सवाल आज का, क्वेश्चन ये किया गया कि अगर मैं गलत कमांड यहाँ पे दे दूं, मिसाल के तौर पे GH लिख, जो कि कोई कमांड नहीं, तो जो ही मैं इसको इंटर करूंगा ये इस ट्रांसलेटिंग में चला जाएगा और मेरा टाइम वेस्ट करेगा। तो मंसूर ने क्वेश्चन किया इससे निकलने का क्या तरीका है? एक तरीका तो है कि मैं इसको कमांड, एक खास कमांड दे दूं, फिर ये इधर नहीं जाएगा। और अगर मैंने वो कमांड जो कि अभी तक नहीं दी हुई आपको नजर आ रहा है, तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और 6, कंट्रोल शिफ्ट और 6, तीनों को एक ही वक्त में। तो देखिए मैं उससे बाहर निकला है ट्रांसलेटिंग से, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन? शाबाश। क्या आज का लेक्चर आपको पहले तो ये बताएं इंटरेस्टिंग लगा? बिकॉज इट वाज ऑल प्रैक्टिकल, नो थ्योरी टुडे। एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर मंडे और ट्यूसडे को फ्री टाइम में हम सिस कॉलेज में आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? कौन बात कर रहे हैं इस वक्त? हसन सर। जी आ सकते हैं, थैंक यू सर। लेकिन हसन आने से पहले अब्बास यहाँ पे मौजूद होते हैं मोस्टली, उनसे कांटेक्ट करके आए, क्योंकि आपको हेल्प आउट करने के लिए बंदा चाहिए होता है ना उस वक्त। तो अगर वो कहीं गए ना हो तो ही कैन अरेंज फॉर यू द प्रैक्टिस टाइम। ओके सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Ladies and gentlemen, is there any question? Surely no. क्या नाम है आपका? सारा। सारा को क्वेश्चन? नो। तो आज आपने ये भी सीखा, आज आपने सीखा सर प्लीज पैकेट ट्रेसर पर दोबारा कनेक्शन कर दें। ओके, 1 मिनट से कम है, जल्दी से करता हूं। दैट इज कायनात। कायनात देखो, ये है मेरा पैकेट ट्रेसर, ये है मेरा पैकेट ट्रेसर। मैंने क्या किया, सब कुछ उड़ा देता हूं। ये देखें जी, मैंने डिलीट कर दिया PC0 को भी और स्विच को भी। ये देखें जी, ये भी गया। कैन यू सी इट कायनात? मैं एग्जिट को प्रेस करके खत्म कर दिया। पहला काम मैंने किया कि नेटवर्क डिवाइसेस में गया और एक अदद स्विच को क्लिक किया और पहला स्विच जो कि 2960 है उसको मैंने डाल दिया अपने कैनवस पे। फिर मैंने डिवाइसेस पे गया, इन डिवाइसेस पे, और एक अदद लैपटॉप या डेस्कटॉप या सर्वर कुछ भी उठा के यहाँ पे ले आया। ये मैंने PC1 यहाँ पे रख दिया। अब मुझे एक कंसोल केबल चाहिए, तो मैंने कनेक्शंस में जाके और ये जो पहला वो है